بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرجدی یعنی کیپریکارن کے لیے 2022 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاروں کی چال، اور جب سیارے مختلف بروج سے ہوتے ہوئے آپ کے برج میں داخل ہوں گے تو کیا اثرات مرتب کریں گے؟ سفر کے معاملات ہوں یا کیریئر، مال و دولت ہو یا عشق و محبت، ازدواجی تعلقات، سوشل ایکٹیویٹیز، اولاد، کاروبار اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں شامل لوگوں اور معاملات کے متعلق جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز جدی خواتین و حضرات، پلوٹو گزشتہ 2 دہائیوں سے آپ کے اپنے برج میں موجود ہے اور 2024 میں یہاں سے رخصت ہوگا۔ اس طویل قیام کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں۔ نفسیاتی سطح پر آپ کو موت کے وجود کا شدت سے احساس آپ کی شخصیت میں ایک نیا روپ لا رہا ہے، ایک ایسا روپ جسے آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 2020 کی ابتدا میں آپ کے ذائچے کا حکمران سیارہ زحل آپ کے دولت کے خانے میں داخل ہو گیا تھا، جو 2022 بھی یہیں گزارے گا۔ پیسے کے حصول کے معاملات میں یہ ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ اس شعبے میں پوری توجہ دیں گے۔ تاہم 2022 میں آپ کو پیسہ کمانے کے لیے بھرپور محنت اور تندہی سے کام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے مالی معاملات کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کے ساتھ اگر آپ کا کوئی تنازع چل رہا ہے تو اسے بھی ختم کیجیے۔ آپ کا تیسرا یعنی میڈیا اور تعلیم کا گھر کئی سال سے خاصا پاور میں ہے۔ نیپچون اس خانے میں مقیم ہے۔ 2022 میں آپ کے لیے گھر کی اہمیت اور بھی ابھر کر سامنے آئے گی، کیونکہ مشتری کم و بیش آدھا سال یہاں گزارے گا۔ 10ویں تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اچھی خبر ہے، وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ سیلز، مارکیٹنگ، ایجوکیشن اور رائٹنگ کے شعبوں سے منسلک افراد کے لیے 2022 بہت بہترین سال ہوگا۔ آپ کی دانشورانہ صلاحیتیں اپنے شباب پر ہوں گی۔ مشتری سال کا باقی نصف حصہ آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں گزارے گا۔ اس سے گھر کی تبدیلی یا گھر کی خرید و فروخت میں فائدے کا اشارہ ملتا ہے۔ بچہ پیدا کرنے کی عمر کو پہنچی خواتین میں معمول سے زیادہ زرخیزی دیکھنے کو ملے گی۔ یورینس گزشتہ چند سال سے آپ کے 5ویں یعنی تفریح و تخلیقی سرگرمیوں کے گھر میں مقیم ہے اور مزید چند سال یہاں ہی ٹھہرے گا۔ اسی کے اثرات کے تحت آپ کے لیے اپنی زندگی میں شامل بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان میں بغاوت و سرکشی اور معمول سے زیادہ آزادی کے رجحانات نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کیئر آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تاہم اس کے نتیجے میں آپ کی تخلیقی قوت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پیسہ کمانے کا عمل بھی خوشکن ثابت ہو رہا ہے۔ جدی خواتین و حضرات، آپ کی صحت 2022 میں اچھی نظر آتی ہے، لیکن 11 مئی کے بعد آپ کو اپنی صحت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ 20 اگست کے بعد مریخ آپ کے چھٹے گھر میں معمول سے زیادہ عرصہ گزارے گا، جس کے اثرات کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ایموشنل ہیلتھ پر خصوصی توجہ دیں اور جسمانی ورزش بھی آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی۔ آپ کے مالی معاملات کی بات کی جائے تو آپ اپنے مالی معاملات پر خصوصی توجہ دیں گے۔ زحل آپ کا حکمران سیارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طاقتور اور آپ کا دوست سیارہ ہے، جو آپ کے دوسرے یعنی دولت کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ اس سے آپ کی مالی خوشحالی میں اضافے کا اشارہ ملتا ہے۔ آپ اپنی ذات پر پیسہ خرچ کریں گے، یعنی آپ کی خوشحالی کا اظہار آپ کی وضاحت سے ہوگا۔ لوگوں پر آپ میں اس تبدیلی کا واضح اثر پڑے گا اور آپ کے لیے کئی دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کی ظاہری وضاحت اور طور طریقے آپ کی آمدن کے اضافے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ شاید اسی لیے آپ اپنی شخصیت کو سنوارنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آپ کے نزدیک سب سے بہترین انویسٹمنٹ وہ ہوگی جو آپ اپنی ذات پر کریں گے۔ تاہم آپ کے مالی امور میں 2022 میں کسی قدر پیچیدگیاں بھی نظر آتی ہیں۔ جو لوگ آپ کے مالی امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے اختلافات چل رہے ہیں، کوئی بات جو تنازع پیدا کر رہی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس مسئلے کو جلد از جلد سلجھانے کی کوئی تدبیر کریں، اس میں تمام فریقین کا فائدہ ہے۔ آپ سب میں اتفاق رائے ہونا بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں گے تو سمجھوتے کی کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ بہرحال اگر ان مسائل کو حل کرنا چاہیں تو یہ حل ہو جائیں گے، اور یہ اتنے بھی گمبھیر مسائل نہیں جو کہ حل نہ ہو سکیں۔ آپ کا مالی امور کا سیارہ یورینس گزشتہ چند سالوں سے آپ کے 5ویں گھر میں مقیم ہے۔ اس سے خوشحالی ظاہر ہوتی ہے، مگر محض مادی دنیا کی خوشحالی نہیں۔ یہاں سے ظاہر ہونے والی خوشحالی روپے پیسے سے کچھ بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کی بدولت آپ کو ایسے کاموں سے پیسہ کمانے کا موقع ملتا ہے جنہیں کرتے ہوئے آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ پیسہ بھی کماتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے چھٹیاں مناتے ہوئے آپ کو کوئی کاروباری سودا کرنے کا موقع مل جائے یا کسی پارٹی
में जाएं और आपके लिए कोई कारोबारी दरवाजा खुल जाए। किस्मत आजमाई के खेलों में कामयाबी मिलने का कभी इम्कान है, लेकिन किसी ऐसे काम पर मुकम्मल तकिया करना खतरे से खाली न होगा। सोची समझी इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदेमंद होती है। आप खुशकुन रास्तों से पैसा कमाएंगे और इसे खुशकुन चीजों पर खर्च करेंगे, यानी वो चीजें जो आपके लिए मुसरत का सामान मुहैया करें। आपकी तख्लीकी कुव्वत भी उन दिनों आपके लिए फायदेमंद होगी। आप अपनी जिंदगी में शामिल बच्चों पर पैसा खर्च करेंगे। ऐसी समतें आपके लिए बहुत मुफीद होंगी जो नौजवानों की ख्वाहिशात और जरूरियात पूरी करने के लिए काम करती हैं, खुसूसन वो जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक से होगा, यानी वीडियो गेम्स, डिजिटल म्यूजिक, वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह। जैसा कि पहले जिक्र हुआ है, करियर के हवाले से 2022 में आपके लिए कोई खास हलचल नहीं होगी। यूं समझिए 2022 में आप अपने करियर की बुनियाद रखेंगे। सलाहियत या एहलियत के हवाले से आपको कोई मसला दरपेश नहीं होगा, बस इस तरफ आपकी दिलचस्पी थोड़ी कम होगी। जोरा आपका करियर का सियारा है जो इंतहाई तेज रफ्तार पर सफर करता है, जिसकी वजह से करियर के हवाले से कुछ कम मुद्दी रुझानात नमूदार होते रहते हैं जिनका असर ज्यादा अरसा नहीं रहता। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीनो हज़रात, घरेलू उमूर के हवाले से आपका 2022 भरपूर साल होगा। 11 मई से 23 अक्टूबर और फिर 21 दिसंबर से लेकर 2023 तक मुश्तरी आपके चौथे घर में मौजूद होगा। इससे जाहिर होता है कि आपको घर बदलने या नया घर खरीदने का कोई सुनहरी मौका मिल सकता है। खरीदारी का मौका ना भी मिला तो एक से ज्यादा रिहाइशगाहों तक आपकी रसाई मुमकिन होगी। मुश्तरी के असर से 2022 में आपके खानदानी हल्के में वुसअत आएगी। बच्चा पैदा करने की उम्र की खवातीन 2022 और 2023 में भी बच्चा पैदा करने की बेहतरीन पोजीशन में होंगी। मुश्तरी आपके रूहानी उमूर का सियारा भी है। इसकी वजह से मजमूई तौर पर आपका पूरा घर और खुसूसी तौर पर कोई बुजुर्ग गहरे रूहानी असरात की जद में है। उनके ख्वाबों की दुनिया मुतहरक हो गई है और उनकी छठी हिस्स बहुत मुतहरक है। उन्हें तरह तरह के माफूकुल फितरत तजर्बात का सामना हो रहा है। अगर आपको अपना घर रूहानी सरगर्मियों का मरकज बनता नजर आए तो उसमें हैरान होने की जरूरत नहीं। आपके वालिदैन या बुजुर्गों में से किसी एक को सफर करने के कई मौके मिलेंगे। बड़ों के माली उमूर में भी कई तब्दीलियां रुनमा होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह खुशहाली में इजाफा होगा और ये रुझान 2023 में भी जारी रहेगा। उनके घरेलू उमूर मुस्तहकम रहेंगे। उनके घर तब्दील करने का कोई खास इम्कान मौजूद नहीं। आपके बहन भाइयों के लिए भी 2022 मजबूत तौर पर अच्छा गुजरेगा। आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों को बारहा रिहाइशगाहें तब्दील करने की जरूरत पड़ सकती है। उनकी जिंदगी इस वक्त उतार चढ़ाव का शिकार है, ताहम बाकायदा तौर पर घर बदलने की नौबत नहीं आएगी। आपका सातवां यानी मोहब्बत का घर 2022 में खाली रहेगा, लिहाजा रूमानवी उमूर में भी इस्तेहकाम रहेगा। जो जद्दी अफराद शादीशुदा हैं उनका ताल्लुक बेहतरीन रहेगा और जो कमारे हैं उनमें से अक्सर कोई शादी करने की ख्वाहिश नहीं महसूस होगी। अगर आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ मसाइल पैदा हुए तो उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि आपकी अपनी अदम तवज्जो होगी। इसलिए बेहतर होगा रोमानवी मामलात को यकसर नजरअंदाज न करें, बल्कि उनके लिए कुछ न कुछ वक्त जरूर निकालते रहिए। 2022 में लगने वाले 2 चांद ग्रहण जो 16 मई और 8 नवंबर को लगेंगे, उनकी वजह से आपके मामलाते मोहब्बत में उतार चढ़ाव पैदा होंगे, जिनकी वजह से आपको अपनी सिमत दुरुस्त करने और गलतियों का अजाला करने की जरूरत महसूस होगी। अगर आप तन्हा हैं तो मोहब्बत आपको ढूंढ लेगी, कोई आपका ताक़ुब कर रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ताल्लुक में ज्यादा कुर्बत और गहराई पैदा होगी। आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। चांद आपका मोहब्बत का सियारा है और दूसरे तमाम सियारों की निस्बत तेजी से फासला तय करता है। मजमूई तौर पर बात की जाए तो जिन दिनों में चांद बढ़ रहा होगा आपके मोहब्बत के मामले ज्यादा बेहतर अंदाज में चलेंगे। आप में ज्यादा तवानाई होगी, ज्यादा वलवला होगा और आप बेहतर अदब आदाब का भी मुजाहिरा करेंगे। नए और मुकम्मल चांद में आपकी समाजी मसरूफियात में इजाफा हो जाएगा। आपके वालिदैन या बुजुर्गों में से किसी एक के 11 मई के बाद मामलाते मोहब्बत अच्छे अंदाज में चलेंगे। अगर वो शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो उनकी शादी होने के कभी इम्कान मौजूद है। कोई संजीदा ताल्लुक भी शुरू हो सकता है। भाई बहनों का साल माली एतबार से तो अच्छा गुजरेगा, लेकिन रूमानवी महाज पर खामोशी नजर आती है। आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों के लिए शादी 2022 के बजाय 2024 में ज्यादा बेहतर है। उनकी जिंदगी में इस वक्त खासा अदम इस्तेहकाम मौजूद है, इसलिए वो मोहब्बत में संजीदगी इख्तियार करने के मूड में नहीं है। बच्चों के बच्चे अलबत्ता रूमानवी और समाजी एतबार से एक भरपूर और खुशबाश साल गुजारेंगे। अगर वो छोटे हैं तो नए दोस्त बनाएंगे और उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा।
अगर वो बड़े हैं तो शादी भी कर सकते हैं या किसी संजीदा ताल्लुक में गिरफ्तार भी हो सकते हैं। नेपच्यून गुज़श्ता कई सालों से आपके तीसरे घर में मौजूद है। रूहानी सतह पर बात की जाए तो ये वक्त आपकी ज़हनी सतह में इजाफा कर रहा है, आपकी अक्ल व दानिश को बढ़ा रहा है और ज़हनी सलाहियतों को सैकल कर रहा है। ताहम इस अमल में कहीं ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। मुश्तरी आपका रूहानी उमूर का स्यारा है जो कमोबेश 6 माह तक आपके तीसरे घर में गुजारेगा। जो पहली चीज आप नोट करेंगे वो ये होगी कि लिखने पढ़ने के हवाले से आपका ज़ौक़ पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। आप रूहानी मौज़ूआत का मुतालिया करना ज्यादा पसंद करेंगे। रवायती तहरीरें आपको फीकी और बेजान महसूस होंगी। आप ज्यादा गहरे पानियों में गोताज़न होने के मूड में होंगे। आपका अबलाग और इज़हार ख्याल का अंदाज भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बहुत से अच्छे राइटर बुर्जदी से ताल्लुक रखते हैं। मशहूर राइटर एमरसन का कौल है कि तहरीर का हर लफ्ज अल्लाह की रहमत से ज़हूर में आता है। अब आपको ये कौल बेहतर अंदाज में समझ आने लगेगा। आप में से अक्सर ख़वातीन हज़रात राइटिंग और शायरी के मैदान में उतरने के ख्वाह होंगे। जदी अफराद आमतौर पर बड़े सीधे और खरे अंदाज में बात करते हैं, मगर अब आप अपनी तहरीर तकरीर में बारीकियों और नज़ाकतों के साथ साथ लतीफ जुमलों का इस्तेमाल भी करेंगे। आप अनकही बातों को भी समझ जाने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या बताया गया है और क्या छुपाया जा रहा है। आपके मुताले में ज्यादा गहराई और गिरफ्त पैदा हो जाएगी। मोहतरम जद्दी ख़वातीनो हज़रात, यूरेनियस तब्दीलियों का स्यारा आपके 5वें यानी तख्लीकी घर में मौजूद है। इसी वजह से आप में से बास को बच्चों की सरकशी परेशान भी करती नजर आती है, लेकिन आप अमली तौर पर समझ जाएंगे कि इन मसाइल से कैसे निपटा जा सकता है। जद्दी अफराद को हाकमियत भी पसंद है और हाकमियत का इस्तेमाल करना भी अच्छा लगता है, लेकिन अपने बच्चों के मामले में आपका ये रवैया अगर हद से बढ़ा तो ये फायदे के बजाय आपके लिए नुकसान का बायस होगा। बाज़ औक़ात जबरदस्ती की वजह से बच्चों की सरकशी और हठधर्मी में इजाफा हो जाता है। यूरेनस की फितरत में है कि वो हाकमियत को झटक दे। हाकिमों को चैलेंज करना उसे लुत्फ देता है, मगर उसे सच्चाई भी पसंद है। इसलिए बच्चों की हुदूद मुकर्रर करने के लिए तहक्कुम के बजाय तदब्बुर से काम लीजिए। यूं वो आपकी बात समझकर मान भी जाएंगे। सेहत की बात की जाए तो उमूमी तौर पर आपकी सेहत की सूरत हाल बेहतर रहेगी। प्लूटो और मुश्तरी की वजह से सख्त दिन आएंगे, लेकिन उनकी मुखालफत आर्जी होगी, जिसकी वजह से जल्द सेहत की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। 20 अगस्त को मरीख आपके 6ठे घर में दाखिल होगा और साल के बाकी माह यहीं गुजारेगा। उस वक्त में आपको अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अपने आप को फिक्र तशवीश से बचाइए, क्योंकि दिल की तमाम बीमारियां अक्सर इन्हीं मसाइल की वजह से पैदा होती हैं। खुदा की इबादत और चंद वजीफे आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। आयतुल कुर्सी का सुबह शाम पढ़ना आपको बेइंतहा फायदा देगा। आपको चाहिए कि अपने दांतों की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। अपने मूड में हमेशा मुस्बत और तामीरी पहलू शामिल रखिए। खुदा आपका हामी और नासिर हो।